Hello students, I'm Nikhil and I welcome you all to the current electricity electrical resistance class in which we are going to learn how to calculate the equivalent resistance in between various points in different cases. Okay, so there is one example in front of me that this is point A and this is point B, and I have to calculate the equivalent resistance in between point A and point B. And over here you realize that there is a resistance R in between point A and point C, then there is one resistance R in between point C and point E. Then there is one resistance R in between point E and point D, and there is one resistance in between point D and point B. So, but one thing you know is that if you are going to mark the potential, you know that potential of point C will be equal to potential of point D. Why? Because they have been connected by a conducting wire, and whenever two points are connected by a conducting wire, their potentials become same. तो इन दोनों पॉइंट्स की जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम. And because these two resistors, now I'm talking about this resistor, you see over here, this resistor and this resistor, these two resistors are lying in between points of same potential. This electrical circuit can be redrawn like this. You are going to redraw the electrical circuit somewhat like this, right? So this is point C as well as point D. Okay, and then you have over here point A and point B. Okay, you have point A and over here you have point B. So this is your point A and this is your point B. Now this is going to be null and void because the current electricity is very visionary, or current is very visionary. It is not going to go in a path in which it is not going to gain something, right? It is not going to gain a lead in the path because from whatever part it's starting, it is returning to the same point. So why would it go in this path? So this becomes null and void. So we have only resistor 2R in between A and B. So if equivalent resistor in between A and B is asked, your answer is simply 2R. So 2R is the equivalent resistance in between point A and B. So as it is obvious, okay? So now we have another numerical over here. So in this particular numerical also you realize that we have this point A and this point B, and we will have to calculate the equivalent resistance in between point A and point B. So what we realize over here is that if you mark the potential of this point as VA, then potential of this point will also be VA, and the potential of this point will also be VA. And if we mark the potential of this point as VB, then this will also be the potential VB itself, okay? Because the both points are connected by the conducting wire, right? So now what is going to happen over here, you see that these two resistors, when we are talking about, all the three are in parallel. Why? Suppose I draw over here VA. Suppose I am drawing over here A point and I am drawing over here B point. So this particular resistor is in between A and B. You see, on its one side it's VA, on another side it's VB. So ये वाला जो resistor है, you realize that this 3 ohm is in between A and B. Also you realize that this particular resistor is also in between A and B. And also you realize that this particular resistor is also in between A and B. So you realize that this 3 ohm, 6 ohm and 1 ohm are in parallel to each other. So therefore what I'm going to write over here in parallel, it is a bit different from capacitor, that it is whatever was the result of capacitor in series, the same is the result of resistor in parallel. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. From over here you can solve 1 by R equivalent in between A and B. So it is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 1. What you can do is you can take 6 as LCM. So this becomes 2 plus 1 plus 6. Right, so this becomes what? This 6 plus 2, 8 plus 1, so it becomes 9 by 6 it becomes, right? And over here then you cut it and it becomes 3 by 2. So 1 by R equivalent is 3 by 2. So R equivalent in between AB, so this is equal to 2 by 3 ohms, right? So R equivalent in between AB जो होगी बेटा वो 2 by 3 ohms हो जाएगी, as it is obvious, right? So the question now, there are a set of questions, that is question number 1, 2, 3 and 4. You'll have to solve in the same way by the same method, and you'll have to find the equivalent resistance in between point A and point B. So in all these diagrams, your work is to find the potential difference in between point A and point B. So over here you have 4 diagrams. So please solve this homework so that you become more acquainted with these type of questions, right? Next students, we have certain methods of solving the electrical circuits, that is certain more methods. So this method is known as method of equipotential reduction. So in method of equipotential reduction, what we have parallel axis of symmetry,
that is the line which is parallel to the direction of current flow. Then there is perpendicular axis of symmetry, that is the line which is perpendicular to the current flow. Then there is shifted symmetry or shifted asymmetry, we will be seeing this via numerical. And then there is path symmetry. So let me deal with them one by one. So suppose I am talking about parallel axis of symmetry. So suppose that I have something like this, I have a circuit like this. One of the easiest types of circuit I'm drawing just to explain it first of all to you. So suppose that I have a circuit like this, okay, and then I have a resistor, okay. So you can see over here that this is resistor R1 and this is our resistor say R2 and this is resistor R3 and this is resistor R4, and say that all are equal to R. Say R1 is R, R2 is R, R3 is R and R4 is R. Okay, so in this case now what is going to happen, suppose I have one more resistor over here. Okay, so in this particular case you see that if the current is coming like this, if the current is coming like this and going like this, okay, so you already know that how does current distribute itself. So the current is less in larger resistor and the current is more in smaller resistor. Now because these two resistors are same, you realize this R2 and R4 are same. So whatever is the value of current in R2, the same is the value of current in R4. See, if R4 was larger, more current would have been in R4. If R2 was larger, more current would have been, if R4 was larger, less current would have been in R4. And if R2 was larger, less current would have been in R2. Okay. So now because both are same, so I will be saying that if I is the current, so I is the current over here also. So its overall current is 2I. And because R1 is equal to R3, because R1 is equal to R3, so same amount of current is over here also, right? And you can, for the same matter of fact, say that, say I'm not taking these two as R and R. Let me take these two as, say this R1 is equal to 2R and R2 is equal to 2R. But because R1 and R2 is same, and say that this particular resistance is say whatever resistance, whatever value of resistance you want to take, suppose you take this as 5R. Okay, so if the current is entering over here like this, agar current yahan se enter hoti hai and the value of current is say I is the value of current over here, so same I must be over here also. Why? You can see over here that अगर यहाँ पे I है 2R है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में करंट को टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ से सपोज if the current is coming like this, so the total resistance that it is facing is 2R, 5R and R. And if it is going like this, it's facing 2R, 5R and R, right? If the current goes directly even, so it's facing 2R and R. And if it goes directly like this, it's facing 2R and R in this particular case also. So see that there is symmetry, right? There is symmetry. यहां से करंट को जितने रेजिस्टर्स मिलेंगे उतने ही रेजिस्टर्स करंट को इधर से भी मिलेंगे. तो अगर यहां से आई गई है तो यहां से आई आएगी. एंड ऑब्वियसली अगर यहां से आई आ रही है तो यहां से भी आई आना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स बराबर है, राइट. और यहां से अगर वो आई जा रही है तो इधर से भी आई जाएगी, ये दोनों रेजिस्टर्स बराबर है. तो अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, एक बात मुझे बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा. तो अगर मान लीजिए आपने पोटेंशियल यहाँ VA ले रखा है और यहाँ की पोटेंशियल आपने VB ले रखी है. So the potential at this point, if I'm telling that this is VC, so VC will be equal to VA minus I into 2R, right? VA minus I into 2R. And suppose I'm telling this as VD, so VD will also be VA minus I into 2R. So in this particular case, what is going to happen, because VC is equal to VD, VC is equal to VD, so no current will flow in this arm, because for the current to be flowing, the potential difference must be 0. So this arm becomes now null and void, right? And so the current is going to go like this and the current over here is going to go like this. So this type of symmetry is known as what? Parallel symmetry, because if you divide the upper and lower half of the circuit into two halves, along the line of current, okay, so you see that the upper half and the lower half are mirror images of each other, and any joint for the same matter of fact lying on the line of symmetry can be reduced to 0. Now let us understand with a further example. एक further example से फिर से हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, right? So now let us understand the same thing over here. इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. So you have all the resistances as R over here. यहाँ पे जितने भी resistances है
ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं ये आर हैं. ओके, सो ईच रेजिस्टेंस ओवर हियर इन द डायग्राम इज आर, and suppose a current is entering over here. Okay, a current enters from over here and then the current leaves from over here. Now what is going to happen over here that suppose you see some path over here. यहां से लेके A से लेकर के B तक आने के लिए, यहाँ पे A से लेकर के और B तक आने के लिए जितने रेजिस्टेंसेस इधर से मिलेंगे उतने ही रेजिस्टेंसेस इधर से मिलेंगे. What you realize over here, you can see that AB is the line of symmetry of the diagram. जो डायग्राम उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ए बी है. मतलब अगर आप करंट मार्क कीजिएगा ना, तो सपोज आप आई करंट इधर मार्क करते हैं तो सेम करंट आप आई इधर मार्क कीजिएगा, क्योंकि इधर से भी देखिए कोई सा पाथ आप सिलेक्ट कीजिए. इधर से 4 रेजिस्टेंस, इधर से 4 रेजिस्टेंस, तो इधर से भी 4 रेजिस्टेंस है और इधर से भी 4 रेजिस्टेंस है, राइट. तो आई और आई आई. अब इस स्टेप पे आकर के क्या होगा, तो यहां से आगे बढ़ने के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से आगे बढ़ने के लिए 3 रेजिस्टेंस है और इधर से भी आगे बढ़ने के लिए 3 रेजिस्टेंस है. तो यहां पे भी जो करंट अपने आप को इक्वली डिवाइड करेगी एंड से I/2 और I/2 में उसने अपने आप को इक्वली डिवाइड कर लिया. फिर ये जो I/2 है, यहां से I/2 कम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये I/2 है, तो यहां से ये आप बोल सकते हो I/2 उधर भी जा सकती थी, बट वन थिंग दैट वी आर श्योर इज कि यहां से I ऑब्वियसली बाहर निकलेगी और यहां से भी I बाहर निकलेगी. तो अगर यहां से I बाहर निकली है और ये I/2 है तो मजबूरी है इसको भी क्या होना होगा, I/2. अब सेम काम मैं बेटा ऊपर वाले पार्ट पे करके दिखा रहा हूं. तो ऊपर वाले पार्ट पे आपको दिख रहा है कि अगर ये I है, अब इस पॉइंट पे क्या होने वाला, तो इस पॉइंट पे इधर बढ़ जाएगी I/2, क्योंकि इधर से 3 रेजिस्टर और इधर से भी 3 रेजिस्टर, तो इधर से भी क्या हो जाएगा ये I/2. और ये जो I/2 है क्योंकि इधर से आ रही है और मजबूरी है कि अब इसको भी I/2 होना पड़ेगा क्योंकि टोटल करंट यहाँ I है. तो अगर ये I/2 है तो ये I/2 है. तो इस डायग्राम से केवल मतलब जो एक आप विथड्रॉ कर सकते हो या फिर जो एक इन्फरेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, वो इन्फरेंस ये है कि आप ये मान सकते हो कि दिस I/2 टर्न लाइक दिस एंड दिस I/2 टर्न लाइक दिस. वो आपस में एक्चुअल एक्सचेंज कुछ भी रहा हो, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न. हमारा कंसर्न क्या है कि ये वाली जो I/2 है वो ऐसे मुड़ गई और ये वाली I/2 ऐसे मुड़ गई. ऐसा हम बात मान सकते हैं, ऐसी हम चीज इमेजिन कर सकते हैं. सो दिस जॉइंट कैन बी ब्रोकन. ये जो जॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, राइट. सो दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड ओवर हियर. ओके, तो यहां से जो डायग्राम है बेटा आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा. तो अब क्योंकि मैंने इस जॉइंट को ब्रेक कर दिया है एंड नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. क्यों क्वेश्चन सिंपल है, बिकॉज नाउ दिस पार्ट दिस बिकम्स 2R एंड दिस बिकम्स 2R. Okay, this is R and this is R, so this becomes 2R and this is R and this is R in series, so this becomes 2R. और 2R और 2R का पैरेलल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. so this is R R and मतलब R हो गया और ये भी entirely ये वाली जो चीज हो गई ये R हो गई हमारे पास और फिर से R है तो ऊपर 3R. वैसे ये वाली चीज हमारे पास R हो गई and this is what, this is R and this is also R. ओके, सो आप देख सकते हो ऊपर से भी हमारे पास कितना हो गया 3R और नीचे से भी 3R हो गया. ऊपर से हमारे पास 3R हो गया और नीचे से भी बेटा हमारे पास क्या हो गया, सो इट्स 3R ओनली. सो 3R एंड 3R, सो यहां से आपको क्या दिखेगा, सो दिस बिकम्स बेसिकली व्हाट, 3R और 3R हो गया. मैं इधर वापस दिखला देता हूं, हो सकता है छुप गया हो. सो दिस 3R एंड दिस इज 3R. so this primarily now becomes what, so the equivalent resistance in between point A and point B is 3R/2. so point A और point B के बीच में जो equivalent resistance होगा that is going to be 3R/2. I hope ये चीज जो है क्लियर है आप लोगों को. Okay, so I hope this question is clear to you. Next, we are proceeding into the perpendicular axis of symmetry. A perpendicular axis of symmetry में actually क्या होता है? You see over here, in this situation, you have to calculate the equivalent resistance in between point A and point B. और point A और point B के बीच में जब हम equivalent resistance calculate कर रहे हैं, so one thing that is worth noting over here is that AB is not the line of symmetry here. AB is not the line of symmetry. AB is not the line of symmetry. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे AB तो line of symmetry नहीं है, but the perpendicular bisector of AB is the line of symmetry. अगर मैं बात करूं कि AB का जो perpendicular bisector है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इस केस में बेटा फ्रॉम द सेम रीजन जो हम लोगों ने पिछले बार रीजन आउट किया करंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि यहां से आपको ऐसा दिखेगा कि करंट यहां से यहां वाली जो करंट एग्जिस्ट करेगी, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री है ना,
तो यहाँ पे मान लो कोई करंट I1 थी तो वही करंट I1 यहाँ पर होगी, और मान लीजिए यहाँ से कोई करंट I2 गई थी तो वही करंट I2 यहाँ से जाएगी। आप लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना करंट को। तो यहां से वन थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू नोट इज दैट कि इसमें भी हम जॉइंट को तोड़ करके घुमा सकते हैं। मतलब ऐसे सिचुएशंस के अंदर भी ये जो जॉइंट है उसको यहां से तोड़ करके घुमाया जा सकता है। तो यार ए बी इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, perpendicular bisector, okay, so but the perpendicular bisector of AB is the line of symmetry. AB is the line of symmetry. So AB is not the line of symmetry but the perpendicular bisector of AB is the line of symmetry. Therefore the joint जो joint lie कर रहा है, the joint lying on the perpendicular bisector can be broken और कैन बी डिटैच्ड। तो इस जॉइंट को डिटैच्ड करके और हम लोग बेटा यहाँ पर नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इस जॉइंट को डिटैच करके हम लोग यहाँ पे नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो द डायग्राम विल नाउ लुक समवॉट लाइक दिस, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ओके। सो यहां से मैंने जॉइंट को तोड़ दिया और जॉइंट के तोड़ते ही अब ये केस काफी ज्यादा इजी हो गया। यहां से आप देख रहे हो कि दिस इज आवर आर, राइट, ये आर हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2r राइट ओवर हियर इन द फ्रंट, एंड देन यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या बेटा, सो इट इज 2r एंड अगेन दिस वन इज व्हाट, सो दिस वन इज r and below also we have what, below also we have 2r, so over here also we have 2r. So now this can be easily solved. You can see over here this is point A, this is point B, तो 2r और 2r का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ऊपर से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा और नीचे से 2r हो जाएगा। मतलब कि अब जो सर्किट आपको दिखेगी, दिस गोइंग टू बी वेरी इजी। मैं एक बार इधर इसको वापस बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इजिली विजुअलाइज हो जाए ये जो सर्किट है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट समवेयर ओवर हियर। तो यहाँ से जैसे आपको दिख रही है सर्किट, लेट मी मिनिमाइज इट क्योंकि अदरवाइज ये सर्किट मेरे पीछे दिख रही होगी आप लोगों को। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बना दे रहा हूँ। तो ये सर्किट बेटा कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, दैट दिस इज आर, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2r एंड बिलो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो 2r, दिस इज 2r एंड 2r, और यहाँ नीचे से भी बेटा क्या हो जाएगा, ये 2r ही हो जाएगा, एंड दिस इज अगेन r. So now this is point A and this is point B. Now it's worth noting that R, 2R, 2R और R. तो ये 2R, 2R का R हो जाएगा और R, R और R का हो जाएगा 3R, और 3R और 2R पैरेलल में है. So you are going to write 1 by 2R plus 1 by 3R and this is now 1 by R equivalent in between AB. So this is going to become what? So you can take 6R as LCM, right? So 6R square you can take as LCM, or simply it is 3R into 2R upon 3R plus 2R. So it is 6R by 5. It's as simple as this. You can write that R equivalent in between AB. So this is going to be equal to what? It is 6R by 5. As simple as this. Okay. So this is perpendicular axis of symmetry. तो ध्यान रखना कि जब भी सिचुएशन के अंदर पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या सिचुएशन के अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, इन बोथ द केसेस व्हाट वी कैन डू इज, इन बोथ द केसेस वी कैन डिटैच द जॉइंट। हम दोनों ही केसेस में जॉइंट को डिटैच कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और व्हेनेवर वी हैव पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द जॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी डिटैच्ड। देयर कैन बी एन एक्सटेंडेड केस ऑल्सो, एक एक्सटेंडेड केस भी हो सकता है इसका, वो भी मैं आपको दिखला दे रहा हूँ जो एक्सटेंडेड केस है, जैसे कि ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है। सो इन दिस डायग्राम व्हाट यू कैन डू इट, ओवर हियर आल्सो AB इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यू सी AB ओवर हियर। सो AB इज द लाइन ऑफ सिमेट्री and it's telling you to calculate equivalent resistance in between AB. So what you can do is you can just detach these points जो आपको joints दिख रहे हैं, ये वाला joint है, ये वाला joint, इसको आप तोड़ करके अलग कर सकते हैं। And once you detach these joints, okay, the numerical becomes pretty easy. So this is what we'll have to consider while solving the methods which are involving symmetry, right? तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। What we have over here, we have, you see the cases, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि बेसिकली दो डायग्राम्स स्क्रीन पर जो हैं, इसमें ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, पहले वाले में तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, देखिए पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है पहले डायग्राम में। क्यों नहीं है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री? बिकॉज यू रियलाइज कि इस एक्सिस पे जब आप मूव कीजिएगा तो ऊपर की ये पॉइंट M और N के बीच में आपको कैलकुलेट करना है, तो ऊपर 2R और 2R है और नीचे R और R है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा
कि जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी ही करंट इधर से लीव करेगी, मतलब इस 2R में उतनी यहाँ से लीव करेगी, और जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी ही करंट यहाँ से लीव करती है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर। मतलब अगर 2R करंट गई तो यहाँ से, मतलब I करंट गई तो यहाँ से I ही निकलेगी बाहर। देखो क्योंकि इसको चाहिए ऑल्टरनेट पाथ, 2R है और इधर से R और R है, और इधर से भी आपके पास R है और फिर R है और फिर क्या है 2R है, तो एक तरह की सिमेट्री हुई ना, 2R R R, मतलब इधर से जा रही करंट को जो, मतलब अगर यहाँ से ट्रैवल करके जाएगी सारे रेजिस्टर्स को इन्वॉल्व करते हो तो 2R, और उसके बाद फिर क्या है R एंड R, और इधर से आ रही वाली करंट है R R एंड 2R। तो अगर यहाँ से 2R गई है तो यहाँ से 2R में से अगर, मतलब इधर से अगर आई गई है करंट इस 2R में, तो इस 2R में से जो करंट बाहर आएगी वो भी आई होगी। और यहाँ से, या बोल सकते हो आप, अगर I1 गई है तो यहाँ से I1 बाहर आएगी, और इधर की ओर अगर I2 गई है तो यहां से जो करंट बाहर आएगी वो I2 करंट बाहर आएगी, राइट। तो यहां से इस चीज को हम लोग यहां पे रियलाइज कर सकते हैं, और ये वाली जो चीज कहलाती है दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बेटा नाम दिया जाता है शिफ्टेड सिमेट्री। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज शिफ्टेड सिमेट्री। इसमें जितनी करंट यहां जाएगी उतनी करंट यहां से निकलेगी बाहर, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे I1 गई तो यहां से I1 निकलेगी, राइट। और यहां से मान लीजिए करंट जो हमारी I2 चली गई, इस बात को ध्यान रखना, यहां से अगर करंट I2 गई तो यहां से जो करंट बाहर निकलेगी वो I2 निकलेगी। सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज शिफ्टेड सिमेट्री। तो बस इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। और HCV में भी जो एग्जांपल्स हैं, कैपेसिटर के अंत में जो एग्जांपल है सॉल्ड एग्जांपल, उसमें ऐसे आपको शिफ्टेड सिमेट्रीज देखने को मिलेंगी, राइट। तो शिफ्टेड सिमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पाथ सिमेट्री के ऊपर है। सो यू सी दैट ये जो बाहर वाले जितने रेजिस्टेंसेज हैं ये R1 है, ये जो बाहर जो रेजिस्टेंसेज हैं, मतलब ट्रायंगल के साइड्स पे जो रेजिस्टेंसेज दिख रहे हैं ये R1 है, यहाँ पे भी ट्रायंगल के साइड्स पे जो रेजिस्टेंसेज दिख रहे हैं ये R1 है, और ये बाहर और अंदर वाले को कनेक्ट करते हुए जो रेजिस्टेंसेज हैं ये R2 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इन द फिगर द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एज शोन, given R1 is equal to 10 ohm and R2 is equal to 20 ohm, determine the equivalent resistance in between point A and D। तो A और D के बीच में बेटा आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो पहला मेथड है जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इट इज यूटिलाइजिंग मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। और इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को पहले हम लोग करंट दौड़ा करके मार्क कर सकते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए बेटा अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक बैटरी लगा दी है जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें कैलकुलेट करना है, ए और डी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो मैंने ए और डी के बीच में एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कि ए से लेकर के डी तक आने के लिए, एक तो मान लीजिए यहाँ पे करंट मैंने कुछ I1 लिख दिया, यहाँ पे करंट I1 लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये वाले पाथ को अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, दिस पाथ एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस पाथ, तो इन दोनों ही पाथ्स में क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये वाला पाथ एक आपको दिख रहा और ये वाला पाथ आपको दिख रहा। सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस करंट फेस करेगी आने में, ए से लेकर के डी तक आने में जितना रेजिस्टेंस इधर से फेस करेगी, ए से लेकर डी तक आने में उतना ही रेजिस्टेंस इधर से फेस करेगी। एक R1 एक R2 फिर R1, इधर से भी R1 R2 और R1 फेस करेगी। तो यानी कि अगर आप इधर की ओर करंट को कुछ I2 लिखिएगा तो इधर से भी जो करंट होगी हमारी बेटा वो क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। तो ये करंट I1 है, अब इधर से करंट I2 है और इधर से भी हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, I2 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल आपने VA बोला है, सो अगर यहाँ की पोटेंशियल पॉइंट V है तो यहाँ पे VB अगर मैं पोटेंशियल बोलूं और यहाँ की पोटेंशियल अगर मैं VC बोलता हूं तो VC विल बी इक्वल टू VB। ये आपको दिखना चाहिए कि VC जो है वो किसके बराबर होगी। मैं डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पाओ मेरे ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये VB और VC ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। VB विल बी इक्वल टू VC, दिख रहा है आपको ये। क्यों VB विल बी इक्वल टू VC, क्योंकि VB क्या हो जाएगी, तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, राइट। तो इट इज VA माइनस I2 इंटू R1। VB will be equal to VC and both will be equal to VA minus I2 into R1। VA minus I2 into R1 हो जाएगा। तो VB और VC बेटा सेम हो गई हैं, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ के पोटेंशियल्स को मैं मार्क करूँ, ये वाला पोटेंशियल E है और ये वाला पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ की पोटेंशियल मान लो आप V बोल रहे हो और यहाँ की पोटेंशियल मान लो आप VF बोल रहे हो, तो ऑल्सो V विल बी इक्वल टू VF। अब V VF के बराबर क्यों होगी, व्हाट इज द रीजन फॉर B बीइंग इक्वल टू VF, क्योंकि यहां से करंट देखिए
इस पॉइंट पे मान लो आप बोल रहे हो करंट I2 आई है, और यहाँ पे मान लो कि मैं बोल दे रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ करंट इज I3। यहाँ पे मान लीजिए मैं बोल दे रहा हूँ कि जो करंट जा रही है वो I3 जा रही है, तो यहाँ से भी करंट आगे I3 ही जाएगी, I3 करंट ही यहाँ से आगे जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है ना, यहाँ इस पॉइंट तक I2 आई है। अब यहां से देखिए कि एक R2 और एक R1 मिलेगा, और इधर से भी एक R2 और एक R1 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर I2 पहुंची है और इधर से एक R2 R1 मिल रहा है, और अगर मैं बोल रहा हूँ ये I3 है, तो इधर से भी R2 R1 मिल रहा है, तो मैं इसको भी I3 ही बोलूंगा। तो इधर से I3 गई, अब इधर से क्या चली गई बेटा फिर? तो इधर से गई I2 माइनस I3, क्योंकि I2 तो पूरी आई थी, यहां तक I2 पहुंची थी हमारे पास I2, और इधर I3 निकल गई, तो I2 माइनस I3, और इधर से भी आ गई I2 माइनस I3। मतलब R1 में ये जो नीचे ये वाला जो सेक्शन है BC, तो BC में नेट करंट जीरो है, क्योंकि दोनों साइड से I2 माइनस I3, तो नेट करंट जीरो है। अब यहां पे मान लो करंट अगर मैं बोल रहा हूं I4 जा रहा है ये वाले सेगमेंट में, तो यहां पर भी मैं बोलूंगा कि करंट जो जा रहा बेटा वो I4 ही है, I4 करंट ही है, क्योंकि अगेन सिमेट्री है। तो यहां पर जो करंट जाएगा इट इज I3 माइनस I4, और यहां से भी जो करंट आगे बढ़ेगी इट इज I3 माइनस I4। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जीरो करंट हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है ना। तो V VF के बराबर हो जाएगी, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड ऑल्सो VC इज इक्वल टू VD। तो जिन सेक्शंस में करंट नहीं हो उसको तो आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाले जो सेक्शन है बेटा, इसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर सकता हूं, ये बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है अगर आप देखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा। ये वाली जो जॉइंट थी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये वाली जॉइंट भी रिमूव हो जाएगी, और ये वाला पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट हमारा D है। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस। Why does the question become very simple? Because now what you realize over here is that कि ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ठीक है ना, इधर से मैं यहाँ पे अब AD ऐसे बना लेता हूँ बेटा। सी दिस इज पॉइंट A, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट A है, और ये हमारे पास पॉइंट D है, और ये हमारे पास 20 ओम्स है। इधर से अगर मैं देखूं तो 20, इधर से हमारे पास टोटल कितना हो गया बेटा? सो टोटल रेजिस्टेंस इधर से हमारे पास 40 ओम्स का हो गया, राइट। 10 20 10, राइट। तो 10 10 20, तो यहाँ पे इधर से 40 ओम्स, और इधर से भी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 40 ओम्स का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये भी हमारे पास टोटल 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की अब बात करूं तो R1/R इक्विवेलेंट इन बिटवीन विच टू पॉइंट्स? तो इन बिटवीन AD, so it is now going to become 1/40 plus 1/20 plus 1/40, right? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 लूंगा LCM, so this becomes 1 plus 2 plus 1, so this becomes 4/40, or rather you can say that therefore R equivalent in between AD, so this is equal to 10 ohms. So 10 ohm is our answer, right? So answer to this question is 10 ohms. Hopefully this is clear to everybody. तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप लोगों को। और इवन अदरवाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आप लोगों को इसको प्रीवियस पेज पे ले जाकर के इस चीज को दिखला रहा हूं कि जैसे यहाँ पर AB वॉज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इस बात को समझने की आप लोग कोशिश करना, व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, कि यहाँ पे AD वॉज द लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके दोनों साइड आपको एक जैसा ही सर्किट दिखेगा। जैसा सर्किट आपको इधर दिख रहा है वैसा ही सर्किट आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब जितना जैसा सर्किट लेफ्ट पे दिख रहा है वैसा ही सर्किट आपको राइट पे दिख रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री से, ज्योमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, रेजिस्टेंस वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जिस लाइन के अबाउट रेजिस्टेंसेस सिमेट्रिकल होते हैं, उस लाइन ऑफ सिमेट्री से इक्वल डिस्टेंस वाले जो पॉइंट होते हैं इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखना, प्लीज नोट दिस पॉइंट, ओके। द पॉइंट्स ऑन द सर्किट, which are at equal distances, okay, let me write it over here. So the points on the circuit, okay, which are at equal distances from the line of symmetry, which are at equal distances from the line of symmetry, are at equal potentials, तो इक्वल पोटेंशियल पे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। द पॉइंट्स ऑन द सर्किट विच आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री आर एट इक्वल पोटेंशियल। तो इवन अदरवाइज मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट करके तो ये बात आपको दिखला ही दी, बट अब एज ए रिजल्ट इस बात को ध्यान रख सकते हो कि जो डिस्टेंस E की थी यहाँ पे, राइट, जो डिस्टेंस यहाँ पे E की थी
वही डिस्टेंस यहाँ पे F की थी, तो E और F सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो R1 नल एंड वॉइड हो जाएगा। और इस लाइन ऑफ सिमेट्री से, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही, जो डिस्टेंस B की थी वही डिस्टेंस C की थी, तो इसीलिए ये B और C सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे और ये भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये दोनों R1 जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना एज अ रिजल्ट। ओके, सो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है आप लोग को। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन सर्किट्स दैट आर इन द गिवन फिगर A एंड B यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो ये जो A और B दिख रहा है, इसमें A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो ऑब्वियसली सिंपल सा सिमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो है कि 9 रेजिस्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड R आर कनेक्टेड टू फॉर्म प्रिज्म शेप्ड नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। ये प्रिज्म शेप्ड नेटवर्क है। तो 9 रेजिस्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड R, ठीक है ना, आप बोल सकते हो यहाँ पे ये रेजिस्टर R1 होगा इसके अंदर। मान लो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे R है, फिर यहाँ पर भी R है, तो 1 2 ये 3 हो गया, ठीक है ना, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 8 और 9। So there are 9 resistors overall. So 9 resistors, each of resistances are connected to form prism shaped network as shown in the figure. Our aim is to find the equivalent resistance of the network first in between point A and B. A और B के बीच में find out करना है, and then we have to find out in between points C and D. तरीका सेम ही रहेगा। एक तो हम लोग या तो सिमेट्री वाले मेथड से कर सकते हैं, आइदर वी कैन प्रोसीड बाय सिमेट्री, और व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट अ बैटरी इन बिटवीन द रिक्वायर्ड और डिजायर्ड पॉइंट्स। जैसे कि सबसे पहली बात बोल रहा है कि हमें ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट अ बैटरी इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और उसके बाद करंट हमारी फ्लो होगी, ठीक है ना। और करंट फ्लो करा करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स की कौन कौन सी पोटेंशियल है, और उसके बाद फिर उस हिसाब से डिवाइड करके और हम लोग चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा था, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लेकर के। तो या तो वो काम कर सकते हैं या तो फिर सिमेट्री से काम कर सकते हैं। सो दिस विल हैव टू ट्राई। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम लोग एक बैटरी अटैच कर देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। मैं ए और बी के बीच में आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखला रहा हूं, और सी और डी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में देखो, एक चीज आप ध्यान रखना कि ए और बी जो है इनमें एंड पॉइंट सिमेट्री है। नाउ व्हाट इज एंड पॉइंट सिमेट्री? ऐसे पॉइंट जिसमें कि करंट जैसी घुसती हुई दिखती है और बाहर भी वैसे ही निकलती हुई दिखती है, उन पॉइंट्स को एंड पॉइंट सिमेट्री वाले पॉइंट्स बोले जाते हैं। जैसे ए पे मान लीजिए कि कोई करंट यहां से I1 चली गई, मान लो टोटल करंट I थी, तो इधर से I1 चली गई, इधर से I2 चली गई, और इधर जो करंट आई वो I माइनस, आप ऐसे बोल सकते हो, जो करंट हो जाएगा इट इज I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। इधर जो जा रही है इट इज I माइनस एंड I1 प्लस I2, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इतनी करंट इधर आ गई है। अब होगा क्या कि B और A एंड पॉइंट सिमेट्री वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, सर्किट जो है इनके अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो A और B एंड पॉइंट सिमेट्री कहलाएंगे। इसका मतलब है कि B पे इधर से I1 आना चाहिए, इधर से क्या आना चाहिए, इधर से I2 आना चाहिए, और ऑब्वियसली ये जो I माइनस I1 प्लस I2 तो आ ही जाएगा, और यहां से I करंट बाहर आ जाएगी। अब देखो, अगर इधर I1 गया है और इधर से अगर I1 आ रहा, मतलब इधर जीरो करंट जानी चाहिए। कितनी करंट? जीरो करंट जानी चाहिए। इस बात को समझना, C और D बेटा यहाँ सेम पोटेंशियल पे है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी C और D के बीच में, ठीक है ना। इस बात को आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सी पे करंट बट गई होती, इस बात को ध्यान रखना, सी पे अगर करंट ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मान लो यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे कुछ बोल रहे हो कि सर यहाँ पे हो सकता है I3 करंट चली गई इधर, तो अगर बेटा इधर I3 करंट गई है, तो फिर यहाँ पे जो करंट आ रही होती वो I1 माइनस I3 आ रही होती। मतलब इधर तो I1 गई, पर B पे यहाँ पे जो आई है वो I1 माइनस I3 है, तो फिर एंड पॉइंट सिमेट्री आपको नहीं दिखेगा। एंड पॉइंट सिमेट्री मतलब जैसा डिस्ट्रीब्यूशन A पे हो रहा I1 I2 एंड I माइनस I1 प्लस I2, वैसे ही B पे होना चाहिए I1 I2 और I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ पे आना चाहिए। यानी C पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला पार्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो अब जो सर्किट आप लोगों को दिखेगी वो सर्किट केवल इस तरह से दिखेगी, क्योंकि वो वाला जो पॉइंट है वो तो नल एंड वॉइड हो गया, तो सर्किट कुछ इस तरह से अब आपको दिख रही है कि ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, और वो वाला ऊपर वाला पॉइंट नल एंड वॉइड है, ठीक है। तो अब
ये वाला सर्किट, बस इतना पार्ट सर्किट का सर्वाइव कर रहा। सो दिस इज द सर्वाइविंग सर्किट राइट नाउ। तो अब ये अगर हमारा सर्वाइविंग सर्किट है और ये पॉइंट ए बी है, ठीक है ना, एंड देन दिस इज आवर पॉइंट सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज से एफ एंड दिस इज ई, सो डी एफ। तो अब यहाँ पे 2R है बेटा और यहाँ पे R है, दिस इज 2R एंड R। सो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा इट इज 2R/3, इधर R R और उधर 2R/3 होगा। अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट थोड़ा रफ हैंडेड बना करके आप लोगों को दिखला दूं, तो इस साइड पे हमारे पास पीछे वाली साइड पे क्या बनेगा, तो पीछे वाली साइड पे 2R/3 है हमारे पास, ठीक है ना, एंड देन इधर हमारे पास R है, ये R है, फिर ये हमारे पास R है, तो R R और ये 2R/3 क्यों, क्योंकि यहाँ 2R है और यहाँ R है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो सामने हमारे पास क्या है, R है और यहाँ पे वापस 2R है, तो इसको भी आप लोग बोल सकते हो 2R/3, ठीक है। एंड ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब ये R 2R/3 और R सीरीज में हो गए क्योंकि, तो इट इज 2R/3 प्लस R में इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 2R/3 प्लस R, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8R/3 हो जाएगी, इधर से 8R/3 और इधर से 2R/3। मतलब जो ओवरऑल सर्किट अब हम लोग को दिख रहा है कि इधर से हमारे पास कितना है, 8R/3 है और इधर से हमारे पास बेटा 2R/3 है और ये हमारा पॉइंट A है, दिस इज आवर पॉइंट A एंड दिस इज आवर पॉइंट B। और अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट सिमेट्री वाले कुछ केसेस होते हैं। तो अब टिल नाउ जो हम लोगों ने डील किया है सर्किट में, वो सिमेट्री के सारे मेथड से डील किया है, ठीक है। और अब जो आगे हमारे जो वीडियो लेक्चर्स इसके ऊपर आएंगे वो किरचॉफ्स लॉज के ऊपर बेस्ड होंगे, मेथड ऑफ इक्विवेलेंट पोटेंशियल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट सिमेट्रिकल क्वेश्चंस जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। एक इनफाइनाइट सिमेट्री है, वो इनफाइनाइट सीरीज सर्किट के बाद आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा मैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ की डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू। और सी और डी के बीच में जरूर आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना, राइट। थैंक यू एवरीवन।